If there's one thing that defined the 20th century, it was the galloping pace of science and technology. From the deciphering of the genetic code to the development of the atomic bomb, from the exploration of the outer space to the exploitation of the microchip, this was the century that brought hereto unimaginable possibilities within human reach. These triumphs were accompanied by a profound shift in our thought processes. The most fundamental change being the perception that given enough time, people, and money, anything and everything was possible. A sense of the limitlessness of human potential. The industrialization and urbanization slowly and subtly engendered a belief that the future of all mankind lay in the cities, and given the orderly march of history, everyone will eventually have a shot at that good life. How will that come about? What kind of social manipulations it would require? And what impact would it have on the natural world? There was little thought given to such questions, save in seminars and fringe groups that questioned the sustainability of an entirely urban world, at least in its present form. As it turns out, reality has a way of exerting itself in odd ways. It is becoming hard to deny, even for the most die-hard skeptics, that with global warming, depletion of vital resources such as water, and numerous other threats to the Earth's ecosystem, our current living style, the urban lifestyle that is no longer sustainable for those living it. Leave aside the billions who are aspiring for it. One might ask as to how can something that most of us take for granted be so wrong? The good roads, the individual driveways and separate cars, the malls, our personal computers, iPhones and iPods, and flush toilets. What's wrong with all these things? Isn't that what development is supposed to be? How can we exist without them? And how can we expect others not to want them or fight for them? Is it fair at all? Ironically, hidden at the core of this high-minded social manipulation is a denial of our complete failure to solve any of the fundamental problems faced by mankind. How to live in harmony and how to share equitably. Instead, there is an elaborately crafted defense of a solution based on unlimited growth and so-called free enterprise that is merely a surrender to human greed and is thus no solution at all. The hard reality is that this lifestyle is anything but a natural product of human evolution. Now, most people can't be faulted for taking it for granted because behind their understanding are years of social engineering, often packaged as pursuit of benevolent goals, and a mammoth sales job facilitated by a century-old marketing campaign relying on intellectuals of all hues, from Marxists to supply-siders and from spiritual leaders to the champions of individual rights. The iniquitous structure of our existing world has been shaped by the agency of force, be it the might of arms or of greater human cunning. The process is simple. The powerful enlist the energies of the collective for an action whose benefits are usurped by a few, while the costs are shunted to the rest. It is in this manner that the village has borne the brunt of the cost of raising our cities, directly, as in the form of landfills or nuclear waste dumps, or indirectly, as in the degradation of its resource base of land, water, forests, etc. The fact is that the village is poor
because it has been subsidizing the cities for a long time. And the poor are so because they live in villages or slums, which are merely villages come to town. With this understanding, one cannot escape two conclusions: that a just world requires not a transfer of resources as is commonly believed, but a removal of subsidies from the poor to the rich, from the village to the city. And secondly, that a sustainable world will need people living in villages, lots of villages. Nowhere is this more apparent than in a country like India, where villages are still home to over 2/3 of its population, and where, behind all the rhetoric about turning India into an industrialized country, the elite have no clue as to what that will do to the 400 million people who would be left without livelihood in their grand scheme of reducing the rural base of Indian economy from 70 to 20%. On the other hand, if they do succeed in creating such an industrial economy, then the world has no clue as to how it will deal with the global warming and the pressure on natural resources that would be so created. There aren't too many options left for mankind out of this mess. We can let things go as they are and brace for the consequences: violent upheavals, resource wars, and mass starvation. We can generate growth charts and live in a world of make-believe. Or we can summon our collective courage and wisdom in trying to evolve a fair system where consumers pay for the true cost of what they consume, and the society undertakes a reversed subsidy program of shifting resources to the rural sector and hence to the poor. In India, such a monumental step has in fact been taken in the form of what is called the National Rural Employment Guarantee Act. The result of a hard and prolonged nationwide struggle, the Act commits the central government to allocate substantial sums to each of the 500,000 odd villages of India. While the scale of committed funds, about $300,000 compared to the $10,000 or $15,000 in the past, is impressive, more remarkable is the progressive nature of this act, which has been crafted with great care and only one goal: maximizing the benefits to the rural poor. As part of this law, any adult person from a rural household can go to his village chief or other officer and ask to be given work at the minimum wage, which varies from 60 to 100 rupees per day. He or she must be given at least 7 days of work per month and at least 100 days of work in 1 year. 60% of all the work in a village should consist of kacha work that does not involve any costly prefabricated materials such as metal, bricks, etc. The work should be offered first to the local workers and should not involve contractors or the use of machines. The law also provides that one of the workers, usually an older one, be assigned to care for the children and another for supplying drinking water. Such workers must also be paid the same wages. There must be a first aid kit available, and there must be provision for shade in the area. The act was conceived amidst a lot of opposition. After all, the money has got to come from someplace, and who would want to give it away? The objections raised were many: lack of funds, need for fiscal restraint, high likelihood of corruption, etc. Thanks to strong civic society support, grassroots efforts at the village level, and perhaps some populist electioneering by the ruling party, the act was passed. And 2 years into its implementation, in all the rural districts of India, one can safely say that it is here to stay. As expected, there are a lot of problems. Corruption is clearly one.
and it occurs at various levels. 100 रुपये का कहा था मैं, कई बार काम चल रहा है तो कहीं 110 आ रहा है, कभी 120 आ रहे हैं, कभी 100 रुपये आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पर 80 रुपये आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत के लिए अलग फंड आता है, ग्राम निधि के लिए क्षेत्र पंचायत के लिए अलग फंड है, और उसके बाद जिला पंचायत के लिए अलग फंड है। उसके बाद डिपार्टमेंटल अलग से फंड है, जैसे खादी ग्राम उद्योग अलग काम कराता है, सिंचाई विभाग अलग नहरों की सफाई कराता है, PWD सड़क की निर्माण। उसके बाद विधायक निधि और सांसद निधि के फंड है। और करते क्या है कि एक ही काम को 8-10 दिखाते हैं। ग्राम प्रधान भी उसी नाली को दिखा देगा, तो ब्लॉक प्रमुख भी दिखा देगा उसी नाली को कि हमने निर्माण कराया, और उसी को जो है जिला पंचायत दिखा देगा। और विधायक निधि के बड़े बड़े माफियाओं का जो एक टारगेट वो है रैकेट, वो दिखाएंगे कि हमने अपना अलग से स्पेशल एक बगल में उसके 2 हाथ छोड़कर एक अलग से बोर्ड लगा देंगे, विधायक निधि से ये काम होगा। और उसके बाद उससे बचा तो सांसद निधि आ गया, सांसद निधि से इसकी मिट्टी डलाएगी। अब करते क्या है, एक दिखाएगा मिट्टी हमने डलवाया 1 फुट, दूसरा डालेगा कि आधी फीट मिट्टी हमने डलवाया, एक बोलेगा हमने सड़क बनाया, तो एक बोलेगा उसकी हमने लेबलिंग कराया। अब ये जो सड़क अभी बन रही है आपको रोजगार गारंटी के अंतर्गत बन रही है, इसके जितने ईंट ब्रिक निकाले जा रहे हैं वो उसी को फिर रिपेयर करके लगा दिए जाएंगे, और उसको बता दिया जाएगा कि ईंट का हमने क्रय किया, नंबर 1 का ईंट। Corruption and exploitation thrive on each other. In rural society, the fear of the powerful is pervasive. जन सुनवाई नहीं करते हैं जिन्होंने काम किया उस सड़क पर, प्रवासी मजदूरों से काम कराते हैं, स्थानीय मजदूरों से काम नहीं कराते हैं। अभी तो लोकल लोग उस पे कुछ नहीं कहते। लोकल लोग अगर कहेंगे तो दबंग उसको डांट देंगे। डर एक भय सी व्याप्त हो गई है, डर कहीं कुछ नहीं है। अगर आदमी रोकने के बजाय टोकना शुरू कर दे कि आप क्यों गलत काम कर रहे हैं, और हर आदमी टोकना शुरू कर दे, तो अपराधी डरेगा, उसको डर हो जाएगा। Of course, the fate of NREGA is closely tied with the extent to which we can rein in corruption. And therefore, the aggressive use of the Right to Information Act becomes crucially important, along with other efforts at reform, such as electoral reforms. और NREGA में जो पारदर्शिता और इस करप्शन को रोकने के लिए जो RTI का मिक्सिंग किया गया, वो एक्ट में ही कर दिया कि आप सोशल ऑडिट करें। सोशल ऑडिट करेंगे, जनता के बीच में करेंगे, जनता देखेगी काम कितना हुआ नहीं हुआ। जैसे डूंगरपुर में जब शुरुआत में हम यहाँ से सोशल ऑडिट करी थी तो उसमें काफ़ी करप्शन निकला, लेकिन उसके बाद जब 1 साल बाद देखा तो उसमें 95% करप्शन नहीं। ये पोल तब खुल रहा है जब सूचना के अधिकार से आवेदन लगाए जा रहे हैं, आवेदन से जो रिकॉर्ड मिल रहे हैं उस रिकॉर्ड के सत्यता के आधार पर ये बातें आ रही हैं। शौचालय के लिए तो काफ़ी धन आए थे, 35 शौचालय का निर्माण हुआ। इनसे ये जब पूछे कि हमारे नाम से लैट्रिन आई है, शौचालय की सुविधा है, तो समिति के लोग बोले पंचायत के लोग कि नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं आया। जब सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया गया, आवेदन के बाद जो सूची मिली उसमें इनका नाम था। बाद में पता चला कि हमारा नाम है। जब मीडिया वाले आए थे तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बातें, तो देखे तो है। उसके बाद कहे कि ठीक है बनवा देंगे, उसके बाद बनवाया नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि 2000 रुपये ले लो, बयान बदल देना अपना। मैंने इनकार कर दिया। एक चीज़ और हुआ है कि आवेदन लगाने के बाद इनको सूचनाएं मिली, और उसी समय जिन लोगों का भुगतान नहीं हुआ था रातों रात उनका भुगतान कर दिया गया। उसके बाद जॉब कार्ड की सूची मिली, उसमें नाबालिग लोग पाए गए, और वो भुगतान ये सिद्ध करता है कि लेबर एक्ट के अधीन ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और BDO के ऊपर मुकदमा हो सकता है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत एक नौगढ़ विकास खंड का लौवारी कला गांव यहाँ काम कराया गया है कि यहाँ पर काम मजदूरों को नहीं मिल रहा था। जॉब कार्ड लोगों के घर थे, और जॉब कार्ड प्रधान अपने घर ले रखा है। तो यहाँ पर एक SP आए थे, अब ट्रांसफ़र हो गया, उनका नाम था प्रवीण कुमार। अब बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे वो, आम लोगों में मिलना। तो उन्होंने आशा परिवार के साथ एक मीटिंग की, और पूरे ग्राम प्रधानों की मीटिंग इकट्ठा की। अब सभी ग्राम पंचायत से थोड़े थोड़े लोग आए, पूछे जॉब कार्ड आपका कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि जॉब कार्ड तो मेरा प्रधान जी के पास है। प्रधान जी से उन्होंने सवाल किया तो प्रधान जी ने बताया कि जॉब कार्ड मैं रखा हूँ इसलिए कि दीमक उमक लग जाएंगे, इनके घर सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, चोरी हो जाएगा। तो SP साहब ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है ज़रा आप बताइए कि आपके घर में इनके जॉब कार्ड सुरक्षित होंगे। तो सब बगल झाँकने लगे प्रधान जी लोग। फिर उन्होंने तुरंत एक ऑर्डर जारी किया, अपने थानाध्यक्षों को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर
अगर ये लोग जॉब कार्ड आम पब्लिक को नहीं लौटाते हैं, ग्रामीणों को नहीं लौटाते हैं, तो इनके ऊपर रासुका लगाया जाए, गैंगस्टर लगाया जाए, सीधे एकदम आदेश जारी किए। प्रधान जी लोगों को क्या कहना, वो 3 घंटे में सारे प्रधान अपने घर जाकर जल्दी जल्दी में सारे लोगों को जॉब कार्ड बांट दिया। इतना ही नहीं, सुबह से काम स्टार्ट हो गया, जो जैसे उसी रूप में। तो उसी का नज़ारा है। जब तक वो थे, काम यहाँ बहुत तेज़ गति से चला और बहुत अच्छा शानदार यहाँ काम हुआ है। ये मेड़बंदी का काम हुआ है, इसमें पानी रुकेगा और सिंचाई होगी, और एक छोटी सी बंदी बनाई गई है, पहाड़ों का पानी आकर उसमें रुकेगा। तो यहाँ पर करीब 200-250 लेबर काम किए हैं। ये 3-4 महीने काम चला है। Many voluntary organizations, such as MKSS, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in Rajasthan, have used the social audits to ensure accountability to a very large extent. Over the past several years, IFA has supported several civic society initiatives designed to ensure proper implementation of the various government interactions on behalf of the poor. This has been in the form of fellowships for activists who are engaged in this work full-time. NREGA implementation has been a major focus. We've had a chance to visit several of these areas in Karnataka, in UP, as well as most recently in Rajasthan. While the ideologically driven or those with vested interests continue to decry its shortcomings, those in the field who are actually working with the people have no doubts about its success and viability. वो सारा भ्रष्टाचार देखते हुए भी भ्रष्टाचार की मात्रा कम है और सारे कार्यक्रमों से कम है। लोग सतर्क हैं, खास तौर पर रोजगार के साइड पे, वेजेस के साइड पे, और दूसरे राज्यों से अच्छा चल रहा है। 90% से ज़्यादा तो पैसा लोगों के हाथों में जा रहा है। बट इन मटेरियल देयर इज अ प्रॉब्लम विच, क्योंकि उनको वहाँ ओवर बिलिंग कोई और चीज़ें, तो उसमें अब लड़ रहे हैं। आप NREGA जैसे कार्यक्रम में करप्शन को कंट्रोल कर सको तो वो दिखाता है, PDS में भी कर सकते हो, वो दिखाता है हेल्थ में भी कर सकते हो। वो दूसरे आप कल यदि न्यूक्लियर डील, सबमरीन डील, ये डील, वो डील में जाओ तो percentages of corruption will be much, much higher. At least as important as its economic benefits is the empowerment that this new act brings to the poor. अब राजस्थान में जो हो रहा है वो हमारी वजह से नहीं हो रहा है। आप NREGA में देखिए कि आपको पेपर मिल जाएंगे भरे हुए कि रास्ता जाम किया। रास्ता जाम करने वाले में कोई नेता नहीं था, कोई लीड नहीं कर रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें अपनी मजदूरी पूरी, हमने मेहनत की, टाइम पे पूरी की। तो ये जो तरीका अपनी एक तरह से एक राजनीतिक समझ भी बनी उनकी, और साथ के साथ अपने अधिकारों की मांग करने की आदत बनी, या वो शुरुआत हुई, वो सबसे बेहतर हुआ उसमें। Here in the village of Vijaypura in Rajasthan, 2 village chiefs and other workers of MKSS give their assessment of NREGA in their villages. अब लगभग कितने लोगों ने 100 दिन का काम कर लिया होगा? 800 की समथिंग, 800 लगभग गए। और कितनों के 100 दिन खत्म हुए? 500। तो जितनों ने अप्लाई किया उन सबको मिल गया जॉब कार्ड। इस पंचायत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको न्यूनतम मजदूरी से कम मिले। काम भी हुआ है, पैसे भी मिले हैं, और ट्रांसपेरेंसी की भी सारी चीज़ें हुई। तो वो मैनेजमेंट सिस्टम एक पंचायत में दिखा सको तो फिर आप और सारे ब्लॉक के 30 पंचायतों को कह सकते हो आप भी करो, फिर आप कह सकते हो जिले में करो, फिर आप कह सकते हो स्टेट में करो। तो आप उसका क्या फ़ायदा देख रहे हैं? चरागाह और पेड़ पौधों वाला और पानी रोकने का काम किया, और वो पौधे लगाए वो भी पनप चुके हैं। और कितने लोगों ने काम किया होगा वहाँ पे? वहाँ किया सर, हमारे गांव में 100 जॉब कार्ड है। अच्छा, 100 लोग। हाँ, उसमें से मतलब 80-85 लेबर ने काम किया। अच्छा। पहले उस जगह मतलब कुछ होता नहीं था, अब उसको पे किया तो अब बरसात के हिसाब से कहीं ज़्यादा है, कहीं है भी नहीं, मतलब उस तरीके से खड़ा। अगले साल में और मतलब और बढ़ेगा। हाँ, बीज ज़्यादा होंगे। कालू, आपने तो कहा कि चरागाही किया, लेकिन ढेरों सड़कें बनाई है। सड़कें तो पहले तो ऐसे जाता, तो सड़क भी बन गई और पास में पानी का स्टोरेज भी एनीकट टाइप हो गया, नाड़ियाँ। As one travels through the countryside in India, there is a new spirit of optimism. People are beginning to sense the potential, and many are already benefiting. In many instances,
Men who had gone to nearby towns to ply cycle rickshaws or to do other manual labor are coming back. सबसे ज्यादा तो यही हुआ है कि महिलाओं ने मतलब करीब आधा तोला सोना खरीदा, लेकिन ये नहीं हुआ कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में नहीं लगाया है। हाँ, किसी ने घर ठीक करने में लगाया, लेकिन इसका उपयोग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं के बराबर 1% हुआ हो। ये तेजू तो सहमत नहीं, ऐसा नहीं है कि सबने सोना खरीदा है। मेरी बेटी जो पढ़ रही थी उसने अपने गर्मी की छुट्टियों में 4-5 हज़ार रुपये कमाए, ऐसे मेड के रूप में काम किया। अच्छा। और उसने अपनी ओपन का भी 1800 रुपये फीस उसने खुद ने भरा है। मेरे रोजगार गारंटी मेड था, मेड रहा, और उसने पैसे कमा करके उसने अपना वो प्राइवेट पूरे फीस भर के वो स्कूल में पढ़ रहा है अभी। महिलाओं को गजब की ताकत मिली है इस कार्यक्रम से, क्योंकि महिलाएं गई मन उसकी वैल्यू बढ़ गई। 50-60 रुपए देते मार्केट में उनको, अभी उनका 100 रुपए आ गया तो मार्केट में 125 रुपए देने लग गए। Now, as the critics say, wouldn't it be better to invest the same money in setting up a factory? And what about the economic spin-off? Will NREGA strengthen local economy and generate better employment outside of it, thus making the act itself unnecessary? वो सिर्फ अभी एक ही सिद्धांत लागू हुआ है कि पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे से प्रोडक्शन होना चाहिए, ये लोगों की समझ में भी नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर काम हुए रोड के, और एक बार पैसा चला गया, ब्लॉक हो गया, उससे कुछ नहीं निकलना है। लेकिन जंगल लग जाए, उसमें लकड़ी आए या घास आए या फल फ्रूट आए। नंबर 2 की कहीं भी आप जंगल लगाओ और ये घास लगाओ, सब कुछ लोगों की समझ है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे भेड़ बकरी कहाँ से, तो वो तो पूरा आप बनाओ और वो उजाड़ते जाएंगे, आप बनाओ उजाड़ते जाएंगे। अब तक की यही प्रक्रिया चलती है। मेरे जैसे रोजगार गारंटी काम चला है, लोग अपने आप पता है लोगों को पहले कि अपने सड़क बनाते हैं, अपना रास्ता बहुत ख़राब है, उसको सही करते हैं, उसके बाद में अपना जंगल बनाए लोगों ने कि अपने जंगल से अपने पशुओं की आय वो बढ़ेगी, और अपना उन्होंने बनाया कि अपना ये तालाब बन जाएगा, जिससे अपना ये ज़मीन अपना उपजाऊ हो जाएगी। पैसे नहीं आते थे पहले, तो लोगों की कहाँ समझ है, पूरे एक साल में 8-10 लाख रुपए आते तो क्या कहते। दोनों ही बातों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि अब तक जो काम हुआ है रोजगार गारंटी में, वो ऐसा दिखता है कि पैसा गया है और ब्लॉक हो गया है, जैसे रोड हो चाहे बिल्डिंग्स हो। लेकिन जहाँ जहाँ भी पानी वाला मामला, पानी रोकने वाला मामला हुआ, और वो हमने देखा बागीदोरा में जब हम गए, और बागीदोरा में जहाँ पानी रोका लोगों ने, वहाँ पहले 2 फसल लेते थे लोग, और रोजगार गारंटी के एनीकट बनने के बाद में 3 फसल लेना लोगों ने शुरू किया है। तो एक बार जो एनीकट बन गया, इसके बाद जिंदगी भर तक के लिए वो 3 फसल लेते रहेंगे। शुरुआत में कुछ चीज़ें जो उस गांव के लिए बहुत ज़रूरी है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने फसल से अच्छी फसल कमा ली, लेकिन फसल को शहर तक ले जाने के लिए आपको एक रोड चाहिए, वो नहीं है, तो वो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जुड़ा हुआ है उससे। तो एक बार वो रोड भी बनना पड़ेगा, एक बार अस्पताल भी बनना पड़ेगा, एक बार स्कूल की बिल्डिंग भी बननी पड़ेगी। तो मैं एक और जोड़ना चाह रहा हूँ कि पिछले साल 2 सालों 3 सालों में टॉरगेट पंचायत में 20 एनीकट बने, उसकी बदौलत पिछले साल मेरे गांव के 3-4 युवाओं को कम से कम उन्होंने 5-6 महीनों में एक मच्छी का व्यवसाय किया, तो उनके कम से कम उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये कमाए। सबसे बड़ी बात तो जो ग्राउंड लेवल वाटर वो जो बढ़ रहा है कुओं में, उसका जो फायदा है वो लंबे समय तक। पहले लोगों में सोच नहीं थी कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, अब तो पैसा सीधा लोगों के सामने आ रहा है, ग्राम सभा में आ रही है, तो लोग चाहते हैं इतना बजट आ रहा है तो हम खुद इसका कर रहे हैं, उसका प्लानिंग हम बना रहे हैं। पहले गांव को तो एनीकट चाहिए और सरकार भेज देती, सड़क भेज देती थी। आम आदमी का ग्राम सभा और पंचायती राज में विश्वास बढ़ा है, क्योंकि इससे पहले जब भी ग्राम सभा होती, प्रस्ताव लिखे जाते, केवल प्रस्ताव लिखे जाते, फिर लिखे जाते, उनका इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं था क्योंकि फंड्स नहीं थे। अब उन्हें मालूम है कि हम जो प्रस्ताव लिख रहे हैं, इन प्रस्तावों पर काम होगा क्योंकि पैसा है। तो पंचायती राज का पूरा जो इंस्टीट्यूशंस है वो मजबूत हुए हैं, और ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति बढ़ी है, नहीं तो लोग आते ही नहीं थे। आज ये स्थिति है कि रोजगार गारंटी के लिए जो ग्राम सभाएं होती है उसमें टेंट छोटे पड़ने लग गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा बढ़ा है कि ये सारी पंचायत कार्यालय बार-बार खुलता है, नहीं खोलते थे लोग खुलवाते हैं।
अभी नया कार्यक्रम है, लोगों का भरोसा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इसमें करप्शन रुक जाएगा तो रोजगार गारंटी से बेहतर इस देश के लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया चीज इनकम होने के बाद वो पैसे को कहाँ खर्च करें, उसमें भी हमें लिमिट मानना पड़ेगा। शादी में अगर खर्चा बढ़ाने लग जाए तो पैसा तो आया लेकिन गया दूसरे से। एक पहले बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीने लगे तो पैसा तो आया लेकिन गया। पहले हम दारू नहीं पीते थे, अब पीने लग गए तो पैसा आया लेकिन गया। तो एक तो सामाजिक कुरीतियाँ और नशा बिल्कुल बंद हो। हम मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं तब तक हम नहीं पनप सकते जब तक कि हमारा पैसा नहीं कमाए। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि रोजगार गारंटी का काम उन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। यदि वो व्यक्ति जंगल उजाड़ता है तो उसको रोजगार गारंटी से अलग कर देना चाहिए। उसको पेनल्टी, एक तरीके का एक डर पैदा होना चाहिए कि Thus, no matter what the critics in Delhi might say, out here the people are clear. इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और आने वाले मैं सोचता हूँ कि 20 साल तक ये रोजगार गारंटी चल जाए, उसके बाद में रोजगार गारंटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। When asked point blank as to what will happen if NREG was stopped, these women replied, "We will just die." Mahatma Gandhi used to say that he was really an ordinary man, but an ordinary man who pursued the truth, who had the clarity to see that if every person on this earth mattered, then the vision of life presented to us was a mirage and a disaster. It has been forgotten that Swaraj, or Gram Swaraj to be more precise, was far more important for him than independence from Britain, which was merely the first step. And he wasn't romanticizing village life. No one was more aware of the injustices, orthodoxy, and other evils rampant in the rural society. But these, he felt, could be addressed by education and engagement. He believed in Gram Swaraj not for the sake of the village society, but for the sake of the human society as a whole. In the long run, NREGA in India is a bold, unique, and revolutionary step. It has the potential of reversing years of public policies that have pauperized our villages and those who live in them. Once everything that we urbanites use has its true cost charged to us, once the village no longer subsidizes the city and becomes a lively and living organism, we might see a halting of the present incessant flow of humanity to the cities, and in fact, might start seeing people moving out to the country. A new world order might be in the offing.